गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने इक्वल सेट के बारे में डिस्कस किया था। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्वल सेट? हियर सपोज टू सेट इज गिवन, सेट A and set B, and same element present in set A as well as same element present in set B. So we can say that this set is called the equal set. Okay, so using by equal set related to one question is present in exercise 1.2 question number 5. Are the following pair of sets are equal? हमें चेक करना है। दो क्वेश्चन यहाँ दिए गए हैं, हमें चेक करना है कि ये इक्वल सेट है या नहीं है, और है तो किस लिए है, नहीं है तो किस लिए है, तो उसका रीजन भी हमें मेंशन करना है। सिर्फ आंसर में इक्वल सेट है नहीं है इतना लिख के छोड़ नहीं देना है, हमको कैसे है इक्वल सेट है तो प्रॉपरली उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो और फर्स्ट क्वेश्चन, ये टू set is present, set A is equal to, here two element is present 2 and 3. In set B, x from x is a solution, so in set B here equation is given, so factorize of this equation and find out the value of x first of all. So here x square, using by splitting method, here factor of this equation, so x square plus 3x plus 2x plus 6 is equal to 0. Now in first two term, here we can take common x, so remaining term x plus 3. In last two term 2 we can take common, so remaining term x plus 3 is equal to 0. Okay, so here x plus 3, another bracket x plus 2 is equal to 0. So here we get 2 point x is equal to minus 2 and x is equal to minus 3. So in set A is equal to 2 element is present 2 comma 3, and set B, here factorize of this equation, so we get same element but here minus sign present in set B. Okay, in both these element, so A and B both are not equal, so here we can say that A is not a equal set for with B. Okay, means A not equal to B. Now in case of second question, again here two set is present. So in set A, condition is present x from x is a letter in the word follow. So how can be written? So first letter is F, second one is O, third one is L. Repeated letter we cannot return, that means repeated element here we cannot return again. So L यहाँ repeat हो रहा है, so here we cannot return again L. Same way O also present here, means O element भी repeat हो रहा है तो हमें दोबारा लिखना नहीं है, and W. Okay, set over. Now in case of set B, y from y is the letter in the word wolf. So again here we can written W, comma O, comma L, comma F. Now see here, in set A total 4 element is present, and in set B total 4 element present in set A and set B. Now check out, in both the set element are equal or not. So first of all in set A F is present, that means this element present in both the set. In case of O, so O is also present in both the set, L also present in both the set, and W is also present in both the set. That means in set A and set B all the elements are same, so we can say that here A is equal to B. That means this set is a equal set. Clear? Okay, now उसके बाद का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 आपको होमवर्क में करना है।
इसमें भी सेम टाइप्स ऑफ क्वेश्चन है, मीन्स सिमिलर टाइप ऑफ मेथड है। इसमें भी आपको सेट दिए गए हैं, कौन से सेट इक्वल है और कौन से सेट इक्वल नहीं है वो आपको चेक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको होमवर्क में सॉल्व करना है, आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। ओके ओके, our next topic is subset. Subset, that means suppose two set is present, set A and set B, right? Here we can consider two sets. Set A is equal to two element is present 1 and 2, and in set B another set is present, and in set B total 3 element is present. Now all the element of set A must be present in set B. That means सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है, ईच एंड एवरी एलिमेंट, एक भी एलिमेंट रहना नहीं चाहिए। तो ए के सेट ए के अंदर जितने भी एलिमेंट है सेट बी के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। सो वी कैन से दैट ए सबसेट का सिंबल है, दिस टाइप ऑफ दिस सिंबल इज कॉल्ड द सबसेट। तो ए सबसेट ऑफ बी, राइट? Means all the each and every element in set A must be present in set B. So we can say that A subset of B. So first of all, here discuss the definition of subset. So a set A is said to be a subset of a set B if every element of A is an element of B, and this is written as a subset, और सबसेट इक्वल टू भी हम लिख सकते हैं, डेट मीन्स ए सिंबल भी लिख सकते हैं। और अगर सेट ए एंड सेट बी के अंदर इक्वल एलिमेंट है तो हम लेस देन इक्वालिटी लिख सकते हैं, मीन्स सबसेट इक्वल टू भी लिख सकते हैं। बट एक्चुअली इसका सिंबल तो ए सबसेट बी है, हम जब यूज करेंगे तो यही सिंबल यूज करने वाले हैं। तो A is the subset of B, right? Once again, in set A and set B, two set is present. Now in both the set, all the element, आपको set B के एलिमेंट नहीं देखने हैं, हमें A सबसेट B बनाना है, A सबसेट B लिखना है। तो A के एलिमेंट B के अंदर होने चाहिए, मीन्स each and every element of set A must be present in set B is called the A subset of B. Okay, now here we can written B subset of A. So here we cannot written B subset of A. Why? Because in set B one element of 1 present, so already this element present in set A. In set B element of 2 is present, so 2 is also present in set A. But in case of element 3, so 3 is not present in set B, so here we cannot means return B subset of A. So here we can return B not subset of A. अब नॉट सबसेट का सिंबल है, ऐसे सबसेट लिखना है और ऐसे कैंसिल कर देना है, तो वो सिंबल हो जाएगा नॉट सबसेट। ओके, क्लियर? नाउ A इज अ सबसेट ऑफ B। जब A B का सबसेट होता है तो B का A के साथ क्या रिलेशन होता है? तो हियर A इज अ सबसेट ऑफ सबसेट इक्वल टू B एंड B इज कॉल्ड, तो B को क्या बोलते हैं? तो कि B इज कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ A एंड रिटर्न एज, इसको उल्टा लिखेंगे ऐसे, B उल्टा सबसेट है और A, राइट? लेकिन ये जो है ज्यादातर यूज नहीं होगा, आपके नॉलेज के लिए है ये टॉपिक। सो B इज कॉल्ड द सुपर सेट ऑफ A, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं सिंबल के द्वारा। ओके, नाउ दूसरी चीज, ऑलवेज रिमेंबर नल सेट है, राइट? नल सेट है। सपोज इन सेट A 2 एलिमेंट इज प्रेजेंट 1 and 2, सो ऑलवेज रिमेंबर नल सेट है
वो ऑलवेज ए का सबसेट होगा, भले इसमें एलिमेंट नहीं है, सेट ए के अंदर एम्प्टी सेट के एलिमेंट नहीं है, बट ये जो एम्प्टी सेट है ऑलवेज सबसेट ऑफ सेट ए। तो ये आप ध्यान रखो। अब उसके रिलेटेड एक एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 9, कंसीडर द सेट्स null set A is equal to set of 1, 3, B and C. Total 4 set is present. Now our question is insert the symbol subset or not subset. So first है empty set. अब empty set अभी हमने डिस्कस किया कि ऑलवेज जो empty set और null set है वो हमेशा सेट का सबसेट होगा ही, तो इसका आंसर रहेगा सबसेट, राइट। आपको यहाँ एम्प्टी सेट मीन्स ये एलिमेंट यहाँ दिखेगा नहीं, लेकिन ऑलवेज रिमेंबर जो नल सेट है वो सेट का सबसेट है। तो आपको यहाँ मिस्टेक नहीं करनी है, ध्यान रखना है कि एम्प्टी सेट सबसेट ऑफ बी, कोई भी सेट का वो सबसेट हो सकता है। ओके, नाउ ए ब्लैंक बी, तो हम चेक करेंगे सेट ए में कितने एलिमेंट है, तो क्या 1 है 3 है। सेट बी में 1 है बट 3 नहीं है। सेट ए का एलिमेंट 3 जो सेट बी में नहीं है। और अवर डेफिनेशन इज ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए मस्ट बी प्रेजेंट इन सेट बी। ऐसा नहीं है कि एक एलिमेंट आ गया सेट बी में तो वो सबसेट बन जाएगा। हमें ईच एंड एवरी एलिमेंट, हर एक एलिमेंट को चेक करना है। 1 तो 1 है सेट बी के अंदर, बट 3 है वो सेट बी के अंदर नहीं है, तो हमें यहाँ ये सबसेट नहीं बनेगा। तो ए नॉट सबसेट ऑफ बी आएगा उसका आंसर। नेक्स्ट कंडीशन है ए ब्लैंक सी, तो सेट ए के अंदर 2 एलिमेंट है और दोनों के दोनों एलिमेंट है वो सेट सी के अंदर प्रेजेंट है। दैट मीन्स यहां हम लिखेंगे ए सबसेट ऑफ सी। सी और सबसेट का सिंबल सिमिलर टाइप है, लेकिन सबसेट का सिंबल ऐसे थोड़ा लंबाना है, सी ऐसे ही छोड़ देना है लिख के, ठीक है। तो दोनों डिफरेंट है, एक ही नहीं दिखना चाहिए। और नेक्स्ट है बी ब्लैंक सी, तो यहाँ 1 प्रेजेंट है, 5 प्रेजेंट है, 9 प्रेजेंट है। दैट मीन्स ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट बी प्रेजेंट इन सेट सी। सो हियर वी कैन से दैट बी सबसेट ऑफ सी। क्लियर? ओके। In exercise 1.3, question number 1, make correct statement by filling the symbol subset or not subset in the blank space. Means यहाँ 2 सेट दिए गए हैं, हमको इन बिटवीन ब्लैंक है, हमको यहाँ सबसेट है और सबसेट नहीं है वो चेक करना है, ठीक है। तो सेम कंसेप्ट, ऑल द एलिमेंट इन फर्स्ट सेट प्रेजेंट इन सेकंड सेट। हाँ, सपोज ऐसी पोजीशन, सपोज इस टाइप का क्वेश्चन है कि सेट जो सेकंड सेट है उसके सारे एलिमेंट सेट फर्स्ट सेट है उसमें प्रेजेंट है, लेकिन वो सबसेट नहीं होगा। फर्स्ट जो सेट है उसके एलिमेंट सेट सेकंड सेट में जाने चाहिए, नहीं कि सेकंड सेट के एलिमेंट फर्स्ट सेट में, ठीक है। तो ध्यान रखना है, फर्स्ट सेट के जितने भी एलिमेंट है जो सेकंड सेट है उसमें प्रेजेंट है, सो वी कैन से दैट दिस स्टेटमेंट इज अ सबसेट। सो इन फर्स्ट वन टोटल 2 सेट प्रेजेंट है, राइट। फर्स्ट सेट है उसमें 3 एलिमेंट है, 2, 3 एंड 4। इन सेकंड सेट है उसमें भी 5 एलिमेंट है। अब चेक करते हैं, सेट फर्स्ट सेट है उसके सारे एलिमेंट सेकंड जो सेट है उसमें प्रेजेंट है या नहीं है वो चेक करते हैं। तो 2, सो 2 प्रेजेंट इन अनदर सेट, राइट। सेकंड सेट है उसमें 2 है प्रेजेंट है।
चलो 3 भी प्रेजेंट है, 4 भी प्रेजेंट है, दैट मीन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट प्रेजेंट इन द सेकंड सेट, सो हियर वी कैन से दैट सबसेट, राइट। सेकंड सेट की बात करते हैं तो सेकंड सेट में ए है, ओ तारी फर्स्ट सेट में एलिमेंट ए है, बट इन सेकंड सेट में एलिमेंट ए प्रेजेंट ही नहीं है, तो आगे चेक करने की अनदर एलिमेंट है वो आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा लिख दो नॉट सबसेट, राइट, बिकॉज फर्स्ट एलिमेंट ए है, ए ही यहाँ प्रेजेंट नहीं है तो वो सबसेट नहीं आएगा। थर्ड क्वेश्चन है सेट ऑफ एक्स फ्रॉम एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ योर स्कूल, आपकी स्कूल में क्लास 11 थे उसके स्टूडेंट, और अनदर साइड सेट है एक्स फ्रॉम एक्स इज ए स्टूडेंट इन स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, आपकी स्कूल के स्टूडेंट। अब 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट है वो स्कूल के स्टूडेंट में इंक्लूड होंगे, राइट, वो स्कूल का ही एक पार्ट है, दैट मीन्स ये जो एलिमेंट सारे स्टूडेंट है वो एक एलिमेंट के फॉर्म में हम कंसीडर करेंगे, एक मेंबर के फॉर्म में कंसीडर करेंगे। यहाँ एलिमेंट नहीं, चलो हम मेंबर, स्टूडेंट है तो हम मेंबर के तौर पे कंसीडर करेंगे, तो सारे जो मेंबर है क्लास 11 के वो स्कूल के मेंबर होंगे ही, तो दैट मीन्स ये सबसेट हो जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ वन, x from x is a circle in the plane and another side है x from x is a circle in same plane with radius 1 unit। अब यहाँ रेडियस दी नहीं गई है, अब ये जो सर्कल है 5 रेडियस के 5 रेडियस कंसीडर करेंगे ये सर्कल में, तो ये सर्कल है इसका सबसेट हो नहीं पाएगा, राइट, इसकी रेडियस हम यहाँ तो रेडियस मेंशन नहीं की गई है तो यहाँ हम कोई भी रेडियस कंसीडर कर सकते हैं। अब सपोज हमने 5 रेडियस कंसीडर की तो उसका सर्कल कैसा आएगा, इस टाइप का अप्रोक्सीमेटली आएगा, और 1 रेडियस है उसका सर्कल आएगा, सपोज ये 1 रेडियस का सर्कल है तो ये जो सर्कल है इसका सबसेट नहीं होगा, राइट, क्योंकि ये तो बड़ा सर्कल है, बड़ा सर्कल है, ये छोटे सर्कल का सबसेट नहीं हो पाएगा। अगर ये रेडियस 1 छोटा सर्कल होता तो ये बड़े सर्कल का सबसेट हो पाता, लेकिन उसके लिए रेडियस यहाँ मेंशन की होती, तो बट हियर रेडियस इज नॉट मेंशन, तो यहाँ हम कोई भी रेडियस का सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, और कोई भी रेडियस का सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये रेडियस 1 यूनिट का सबसेट नहीं हो पाएगा, तो ये नॉट सबसेट आ जाएगा, राइट है। क्वेश्चन नंबर 5, x from x is a triangle in a plane and x from x is a rectangle in the plane। अब ट्राइंगल थोड़ी ना रेक्टेंगल का सबसेट हो पाएगा, तो ये तो नॉट सबसेट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट वन है, ये तो ऑब्वियसली क्लियर कट है, एक वन साइड ट्राइंगल है और अनदर साइड रेक्टेंगल है, तो सारे ट्राइंगल है वो रेक्टेंगल के सबसेट तो हो नहीं पाएंगे, तो ये नॉट सबसेट आएंगे। नेक्स्ट वन है x from x is an equilateral triangle in a plane। अब ट्राइंगल बहुत सारे होते हैं, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, आइसोस्केलस ट्राइंगल है, राइट। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो ट्राइंगल का अनदर साइड है x from x is a triangle in space in a plane, सेम प्लेन, तो ऑब्वियसली इक्विलेटरल ट्राइंगल है वो ट्राइंगल का एक पार्ट है, तो वो तो ट्राइंगल में आ ही जाएगा, तो यहाँ ऑब्वियसली सबसेट ही होगा, क्लियर। सो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, आइसोस्केलस ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, वो तो ट्राइंगल के ही पार्ट है, तो यहाँ आंसर आएगा हमारा सबसेट, क्लियर। तो okay, our next topic is question number 2, examine whether the following statement are true or false, clear।
ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है या फॉल्स है हमें चेक करना है। तो फर्स्ट है सेट ऑफ ए कॉमा बी। अब दोनों एलिमेंट है सेट ए के अंदर, सॉरी ये अनदर सेट है उसके अंदर प्रेजेंट है, और ये सारा एलिमेंट अनदर सेट है उसके अंदर प्रेजेंट है। ये जो आंसर है उसका सबसेट आना चाहिए, बट यहाँ क्या है, नॉट सबसेट, तो जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, राइट। सेकंड वन है सेट ऑफ ए कॉमा ई सबसेट ऑफ सेट ऑफ एक्स फ्रॉम एक्स इज ए वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब हमारा वोवेल्स है इंग्लिश अल्फाबेट्स के ए ई आई ओ एंड यू। सो ये दोनों एलिमेंट है इसके अंदर प्रेजेंट है, तो ये स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाएगा, ये सबसेट हो जाएगा, करेक्ट है, राइट। नेक्स्ट वन है सेट ऑफ 1, 2, 3 सबसेट ऑफ सेट ऑफ 1, 3, 5। 1 already present here, 3 also present here, but 2 is not present in set, so यहाँ not सबसेट आना चाहिए, but यहाँ सबसेट दिया गया है, तो ये जो सेंटेंस है वो फॉल्स है, राइट। अब रिमेंबर सेट ए सबसेट ऑफ सेट ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। अब ये स्टेटमेंट कैसा है, ट्रू स्टेटमेंट है, राइट, बट मैं लिखूंगा यहाँ फॉल्स है ये भी स्टेटमेंट। कैसे, तो दो सेट है, सपोज सेट ऑफ ए कॉमा बी, तो ये पूरा सेट हो गया, राइट, सॉरी सेट के अंदर है सेट ए, तो ये एलिमेंट प्रेजेंट है तो ये ट्रू हो जाएगा, फॉल्स नहीं। बट सपोज सेट ए की जगह पर सिर्फ ए होता और सबसेट सेट ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी होता, तो ये नॉट सबसेट हो जाता। यहां सेट के अंदर एलिमेंट है, दैट मीन्स ये सबसेट हो जाएगा सेट ए, मीन्स एलिमेंट ए प्रेजेंट इन दिस सेट, तो ये सेंटेंस है ट्रू हो जाएगा। बट यहां सेट है सेट ए और बिलोंग्स है, यहां सबसेट नहीं है, बिलोंग्स टू है, और सेट है, सी हियर सेट है, इसको हम दो सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो सबसेट और नॉट सबसेट, और एलिमेंट है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू। यहाँ सेट फॉर्म दिया गया है और बिटवीन में बिलोंग्स टू दिया गया है, और सेट है ओनली दो सबसेट मींस दो सिंबल से रिप्रेजेंट होगा, सबसेट और नॉट सबसेट, तो दिस स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, इसको बिलोंग्स टू के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है, राइट। नेक्स्ट वन है, ध्यान रखो आप, इसमें खास ध्यान रखो, सेट है तो सेट को हम रिप्रेजेंट करेंगे सबसेट और नॉट सबसेट से, और ओनली एलिमेंट है तो एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग टू से, राइट। अब नेक्स्ट वन है सेट ऑफ एक्स फ्रॉम एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। अब इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 दैट मीन्स 2 आएगा, 4 आएगा, राइट। ओनली दो नेचुरल नंबर है जो 6 से लेस देन है, और सबसेट ऑफ x फ्रॉम x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, which divide 36, so 2 divided by 36, 4 is also divided by 36, that means all the element of set, this set must be present in another set, right। तो ये हो जाएगा हमारा सबसेट, और यहाँ सबसेट सिंबल दिया गया है, that means दिस सेंटेंस है वो ट्रू है, तो हमारा आंसर आ जाएगा ट्रू। रिमेंबर वंस अगेन, इसमें आप खास केयर रखो, सपोज कोई एलिमेंट है 9 है और ब्लैंक है, और सेट ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9 है, राइट। तो हम यहाँ कौन सा सिंबल, यहाँ रिलेशन कौन सा होगा, तो हम यहाँ सिंबल अप्लाई करेंगे बिलोंग टू,
व्हाई? बिकॉज ये एक सिंगल एलिमेंट है और एलिमेंट है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बिलोंग टू से। बट सेम एलिमेंट को हम यहाँ सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम यहाँ बिलोंग टू की जगह पर सबसेट रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके रिलेटेड जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्वेश्चन में है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बिलोंग टू कब यूज होगा और सबसेट कब यूज होगा वो ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ओके।